Abhishek, KL Sharma, Kishori Lal Sharma, who's known to be a close aide of the Gandhi family since the 80s. He's worked very closely with Rajiv Gandhi as well. And he's acted as a de facto manager in the absence of either Rahul Gandhi in Amethi or Sonia Gandhi in Rai Bareli. Today, he's been fielded from Amethi. How are the local Congress cadre looking at it? Well, certainly, Nabila, KL Sharma's presence in Amethi is Congress believe that will benefit them because he is in a way local candidate. He has always been there for past 40 years, and that sentiment Congress shares, the people of Amethi shares. Let me show you the visuals first. KL Sharma's roadshow is now has reached the collectorate. He is at the truck and will be leaving in a short while when he will file his that important nomination. Now, what is also very important is that how this whole seat has been, into the center of the Gandhi family, and Priyanka Gandhi Vadra coming and appealing is a big thing. क्या लगता है आपको, क्या पूरा सपोर्ट मिलेगा केएल शर्मा जी को? बिल्कुल मिलेगा सपोर्ट, बिल्कुल मिलेगा। राहुल जी के नाम पर या राहुल जी की बात पर राहुल जी जो कहेंगे वो हम सभी कांग्रेसियों के लिए पत्थर की लकीर है। निराशा है क्या राहुल गांधी ने? कोई भी किसी भी तरह की निराशा नहीं है। गांधी परिवार का जो निर्णय है वो हम सभी के लिए मान्य है। आपको क्या लगता है? प्रियंका गांधी ने भी कहा कि पूरा अपील किया उन्होंने कि हमारा रिश्ता है 40 साल का केएल शर्मा से। क्या इसमें कोई संदेह भी है? ये परिवार पूरा अमेठी इनके बगैर बेहाल है। राहुल जी, प्रियंका जी और भाई साहब को केएल शर्मा जी आदरणीय को टिकट दिया है। हम लोग इनको कम नहीं आंकते, उनके परिवार का सदस्य मानते। स्मृति ईरानी के लिए आसान हो गया है कि नहीं अभी भी टक्कर है? सबसे बड़ी बात है कि केएल शर्मा जो है यहाँ पे विगत 25-26 साल से काम किया है। आवाम वर्कर ही नहीं, उनका वोटर भी जानते हैं। अगर गाड़ी अब किसी मार्केट निकल जाए तो लोग वोटर बताते हैं केएल शर्मा के। तो कहने मतलब इनका कोई वोटर पहचान नहीं करने। जनता में 30 सालों से जो काम कर रहा था उसी को टिकट दे दिया। लगता है कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया है? हाँ, कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया है। बहुत अच्छी बात है। केएल शर्मा के आने से यहाँ का अमेठी का वोट प्रतिशत और बढ़ेगा और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लेकिन आप लोग तो कह रहे थे कि गांधी परिवार का आदमी हो, राहुल हो, प्रियंका हो, निराशा भी है कि नहीं? कोई निराशा नहीं, वो तो गांधी परिवार का फैसला है, वो तो है ही है। हर कार्यकर्ता गांधी परिवार का एक सेवक है, सिपाही है, सच्चा सिपाही है। हर व्यक्ति जानता है क्या अमेठी में? हर व्यक्ति जानता है? आपको लगता है हर व्यक्ति जानता है केएल शर्मा को? हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है। उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, पक्का मिलेगा। प्रधान जी, आप बताइए क्या फायदा मिल रहा है उनको इस चुनाव में? अरे बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? हाँ, बताओ, राहुल गांधी कांग्रेस सरकार सकारात्मक राजनीति करती है, बीजेपी नकारात्मक, सब बेच लिया। केएल शर्मा को वोट मिलेगा राहुल गांधी के नाम पर? हाँ, केएल शर्मा को वोट करेगी जनता? बिल्कुल मिलेगा। वो तो सब कुछ है, उनके घर के हैं, समझो एकदम जीते हुए हैं। You heard the voices. I mean, they are saying KL Sharma will be equally treated as a Gandhi family member, and that is why, the cadre here, you see the flags of Samajwadi Party along with the Congress Party flags, are very clear positioning of the alliance in Amethi. We've also seen the cadre from the Aam Aadmi Party also. They also came, and this is the kind of support which Amethi is giving to KL Sharma. In a way, it's a strategy to get someone from the ground, someone who has been maintaining it for 40 years. Priyanka Gandhi Vadra also in her address said the same thing, and that is why Congress has a feeling that even though Rahul has chosen to nominate, do his nomination from Rai Bareli, Priyanka is not in the political fray, right. But KL Sharma's presence in Amethi is an advantage as a local person. Yes. Okay, so we're going to see if this is indeed an advantage. A Chota Karyakarta has been given an opportunity from Amethi, or is this just a mere filler at this point while Rahul decides to fight from Rai Bareli instead? I'm going to cut across to Rajdeep Sardesai, who's spoken to Pramod Tiwari, Congress MP. Let's have a listen. प्रमोद जी, आप हमें बताइए, राहुल गांधी का फैसला कि राय बरेली से लड़ना और प्रियंका गांधी वाड्रा का फैसला कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, क्या संदेश दे रहा है? ये बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी से भाग गए हैं। देखिए, बीजेपी पहले कह रही थी कि वो अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से भाग गए हैं, फिर धीरे से नीचे उतर के आए। उनका अपनी परंपरागत सीटों से भाग गए हैं, दोनों छोड़ दिया है। अब आज ये कह रहे हैं कि वो अमेठी से रायबरेली आ गए। उनको थोड़ा सा अगर सुन रहा हो कोई तो समझ जाए
कि ये इंदिरा गांधी की सीट है, ये इंदिरा गांधी की सीट है। फिर जब सोनिया जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुई तो उनकी सीट हुई, और अब हमारे सर्वोच्च नेता इस समय राहुल गांधी जी हैं। तो रायबरेली का नाता गांधी परिवार से, जब से गांधी परिवार आया, उसके पहले फिरोज गांधी जी होते रहे। नहीं, आप कह रहे हैं रायबरेली पारिवारिक सीट है, आपका कहना है कि रायबरेली एक तरह से गांधी फैमिली की ओरिजिनल पारिवारिक सीट है। ये भी कह रहा हूँ और ये भी जोड़ रहा हूँ कि अमेठी से भी उतना लगाव रहा, क्योंकि राजीव जी वहाँ हुए, सोनिया जी रही, राहुल जी रहे। तो अब दो में से एक अगर चुनना है तो इंदिरा गांधी की सीट में क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बीजेपी को तो मौका मिल गया ना ये कहने के लिए। स्मृति ईरानी कह रही है भाग गए, मुझसे डर गए हैं। उनसे तो हर आदमी डर जाएगा, जैसी हैं वो अच्छा है, उससे मतलब नहीं। लेकिन उनको तो किशोरी लाल शर्मा ही हरा देंगे। कारण ये है कि किशोरी लाल शर्मा वहाँ एक एक कार्यकर्ता को 91 से जानते हैं। ये मुझे बताइए, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं लड़ रही है, इससे क्या मैसेज जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा केवल कैंपेन करेंगी? क्या वो भी अगर चुनाव न लड़े तो क्या मैसेज गया है? दो मैसेज जाते हैं जी। एक तो भाजपा कल कहती, आप पूछ रहे होते, हाँ। मैं जवाब दे रहा होता जी। कि पूरा परिवार लड़ गया, ठीक है ना, उसका जवाब मिल गया, नहीं भाई पूरा परिवार नहीं लड़ रहा है। दूसरा, कैंपेन में इस समय प्रियंका गांधी की जितनी मांग है राहुल जी की तरह ही बराबर ही करीब करीब, तो एक किसी को तो बाहर रहना है जो पार्टी के लिए करे। तो ये परिवारवाद वाला अब आप नहीं पूछ पा रहे हो, मुझे नहीं जवाब देना पड़ रहा है, इसलिए ये सोच समझ के नहीं, बीजेपी अभी भी कहेगी परिवारवाद की राय। जैसे आपने कहा ये पारंपरिक सीट है गांधी परिवार की, वो कहेंगे ये परिवारवाद है कि आप किसी दूसरे को दे देते रायबरेली की सीट। और ये भी डर है कि अगर राहुल गांधी दोनों सीट जीत जाते हैं, रायबरेली वायनाड, वो निकल जाएंगे वायनाड और रायबरेली, फिर कौन लड़ेगा? तब आप पूछना, तब मैं जवाब दूंगा। अभी का सवाल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बीजेपी पहले मुझे इस बात का जवाब दे कि पाकिस्तान को ले आई है मैदान में, चुनाव के मैदान